inferno in a fire at a restaurant at Malviya Nagar in South Delhi. The fire broke out at a restaurant in that part of Delhi earlier today, and Delhi Fire Services received a call at approximately 9:45 this morning. 3 people have been rescued from the basement by the Delhi Fire Services personnel, and they were rushed to the hospital via ambulance. The divisional officer, Ravinder from Nehru Place Fire Station, is currently on the spot. Further details are awaited, including, of course, the circumstances in which this fire broke out. But this has turned out to be a massive tragedy indeed, with at least 20 people reported dead at this juncture. Let me go across to Priyank, who gets us all the details from what's happening. Priyank, this is extremely shocking news. 20 people already being reported dead at this deadly fire that broke out earlier this morning at around 9:45. What are the details in terms of those who are currently injured or being treated, and has the fire been contained? What's the latest? Yes, Shakti Siddhant, very unfortunate news coming out from the narrow lanes of Malviya Nagar, where this restaurant was situated, where the fire broke out around 8:55 in the morning. PMO India has also tweeted about it that the loss of life ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन रिकवर करी हैं, जो कि बेसमेंट से थी। उसके बाद जैसे जैसे हम आग को बुझाते गए, वैसे वैसे हम बिल्डिंग में अंदर घुसते चले गए हैं, और उसके बाद हमने जाकर के ऊपर वाली फ्लोर से भी काफ़ी लोगों को निकाला है। टोटल 37 लोग हमने निकाले हैं, जिनको हमने कैट्स या APCR जो भी अवेलेबल थी बाहर, उसके द्वारा हमने जो है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया है। उनका स्टेटस अभी हॉस्पिटल से हम कंफर्म कर रहे हैं, जो भी आ जाएगा हम आपको बताएंगे। कितने लोग अभी तक कितने लोग रिकवर? ये डाटा हॉस्पिटल से डिटेल आने के बाद ही पता लग पाएगा कि उसमें से कितने इंजर्ड हैं, कितने अभी सीरियस हैं, कितने उसमें डेथ हैं। ये तो हॉस्पिटल से डाटा आने के बाद ही पता लगेगा। बिल्डिंग के बारे में पूछ लो। बिल्डिंग के अंदर क्या वो ऐसा हुआ जो इतने लोग अचानक इतनी जल्दी होगा? देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है, और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया हुआ है चारों तरफ से। इसमें आगे की तरफ फसाड लगा हुआ है, और फसाड के अंदर जो खिड़कियां हैं या इवन बाथरूम की भी जो खिड़कियां इस बिल्डिंग के अंदर हैं वो सारी सील्ड हैं, उनमें कोई ओपनिंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये बिल्डिंग एक शाफ्ट की तरह है। तो ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ वेंटिलेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता, जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो आग जब लगेगी तो हीट और धुआं बहुत तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा, और उसकी वजह से किसी को उससे निकलने का समय नहीं मिलेगा। इस तरह की बिल्डिंग में अक्सर ऐसा होता है। किसी फायरमैन को तो कोई चोट नहीं? हमारे एक लीडिंग फायरमैन है, उनको हाथ जब वो रेस्क्यू कर रहे थे, निकाल के ला रहे थे किसी को, तो उनके हाथ में कट लगा है। ही इज एडमिटेड। उनको भी हमने भेज दिया था PCR के या PCATS के द्वारा ही उनको हमने भेज दिया था हॉस्पिटल। सर, इनके पास वो LOC थी या नहीं? देखिए, अभी तक जो डाटा हमने अपने हेडक्वार्टर को हमने पूछा था कि इसका फाइल कोई रिकॉर्ड या कुछ है, तो हमारे पास इसका अभी कोई ऐसा नहीं मिला है कि इसको हमने। So those are the visuals that you see from a certain vantage point of the fire that broke out. It's a fairly high intensity fire, as we can see on our screens. We'll await some more details about whether or not this fire has been contained, but in that inferno, at least 20 people are now being reported dead. We'll await an official confirmation of the exact death toll. But Priyank, coming back to you once again, as you've been keeping an eye on these events, what do we know about this eatery? How did the fire break out? And what do we know about the latest death toll? What are the details that you have right now? Siddharth, while senior officials in the fire department have been maintaining that there was no fire safety norm which was followed, and all these windows were grilled, and there was no space for those people to leave from the location. That had also resulted into this massive casualty figure which is coming out from this incident of fire. What we know that around 8:55 this fire has started from this location, and then at the basement where this restaurant was situated, also any commercial usage of the basement has been prohibited post Rouse Institute incident happened where student had lost their life, but still this kind of eatery was being operated. Just above that, there was a 4-story building. This building was made as a hotel accommodation for those patients who come from foreign country, and what we are getting to know that most of these individuals who have died in this incident could be foreign national. Although the official number and that the kind of detail which is yet to be provided from the Delhi police or the fire department officials are yet awaited. Later to that, what had happened, that the smoke suddenly engulfed the
upper floor of the house, and there was no space which was there for these individuals to come out. So most of this death could be a result of suffocation because of the smoke which has engulfed this particular area, this particular building, which has been the cause of death of all these individuals in this incident of fire. These people were there on these 40 rooms which are situated in this particular. आ गई थी, फिर फायर फाइटिंग की टीम से उन्होंने आग बुझाया, हम उनके साथ घुसे हैं, तो हमें जली हुई हालात में जीनों पे भी मिला है पेशेंट्स, जीनों पे भी थे, बेड के नीचे घुसे हुए थे, बाथरूम में, और मतलब जहाँ नहीं कह सकते वो मंजर हम आपको बता नहीं सकते हैं कि इतना बुरा मंजर था। सर ये हालात इतने बुरे थे कि हम लोग खुद डर गए थे। फायर फाइटिंग के साथ हम जब अंदर से बाहर पेशेंट्स को निकाल ले तो हमारा खुद जान जोखिम में डल गई थी। अगर हम टाइमली एक्शन नहीं लेते तो सर ये आइडिया नहीं है। 30 से ऊपर पेशेंटों को हमने मैक्स में शिफ्ट किया है। सबसे ज्यादा मैक्स की प्रॉपर हेल्प करी है। मैक्स की टीम यहाँ आ गई थी विद डॉक्टर, एम्बुलेंस के साथ। आप पीछे जाएंगे वहाँ पे खड़े हुए हैं मैक्स के डॉक्टर, वहाँ हम लोग पहुंच गए थे। वहाँ पे हमने पेशेंटों को शिफ्ट किया है। ज्यादातर पेशेंट अनकॉन्शियस थे, बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने खुद एम्बुलेंस में इमारत को देख लिया, 22 कमरे यहाँ पर बने गए, रेस्टोरेंट नीचे चल रहा था, एक एग्जिट था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। ये देखिए ये BNB बना हुआ है, सामने यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और हमने लोगों को बहुत सेव किया है फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस के साथ मिलके, और बहुत सारा हम बता भी चुके हैं अब तो बाकी सब सेफ है। देखो आग लगने का कोई नहीं बता पाएगा, मैं कैसे बता दूंगा। फायर फाइट मैंने देखा, आग लगी हुई थी, फायर फाइटिंग ने बुझाई और हमने उनको सेव कर लिया। अराउंड 40-50 बहुत सारे 30 कम से अनकॉन्शियस थे, कुछ जले बहुत कम थे। वैसे भी बहुत छोटी बड़ी घटना है जिसमें 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अफ्रीकी मूल के काफी सारे लोग हैं, नाइजीरियन बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और कुछ लोग भी हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये होटल का हिस्सा जो है वो यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है, एसी का हिस्सा गिरा पड़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये होटल का पूरा हिस्सा जल चुका है। नीचे रेस्टोरेंट चलता था, बेसमेंट में किचन था और ऊपर जो है गेस्ट हाउस था, लोग रहा करते थे। कब हुआ था, क्या देखा था? कुछ नहीं सवाल करूंगा सर। अगर ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, 20 लोग मर गए, आग लग गई, एक एक्सीडेंट वहां पर था। सवाल आपको ना करूं। Well, a lot of foreign nationals suspected to be part of that death toll. We'll, of course, await an official confirmation as well about the names, their identities, where they're from. ये सुबह 9 बजे की घटना है और 9 बजे आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने इस पर अपना पूरा क्विक रिस्पांस किया है, यहाँ करके काफी लोगों को बचाया है। 47 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें से 20 से 21 लोगों का जो है वो कैजुअलिटी हुई है। अभी 7-8 लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं। सर, 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको लगता नहीं कि इतनी बड़ी आग की घटना कैसे हो गई दिल्ली में? मैंने कहा कैसे हो गई मैडम, ये तो मैं अभी अब तक कोई जांच में कुछ इनिशियल जो है वो सामने है? जांच इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। इनिशियली कुछ पता चला है कि क्या शॉर्ट सर्किट था, ब्लास्ट हुआ है एसी? अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट होगा या किसके कारण से आग लगी है। निश्चित रूप से एजेंसी अपना जांच का काम करेंगी और ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जिन लोगों की लापरवाही है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। निश्चित रूप से इस पर विभाग के लोग हैं जो काम करेंगे। सर, अभी क्या आपकी सीएम मैडम से बात हुई है, क्या कर रहे हैं, क्या जांच के लिए किस तरह की इंक्वायरी बिठाई जाएगी? फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग जो है वो विदेशी भी थे इसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, निश्चित रूप से जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, ये सारी चीजें होंगी। अभी सीएम मैम बार वो भी यहाँ का जायजा ले रही हैं, अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं और जो आग के कारण है उस पर कार्रवाई भी होगी और निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि क्या इलीगल तरीके से होटल चलाया जाता है, क्योंकि आपका इलाका है और ऐसे में होटल में आग लगना 10 साल पुराना ये होटल है। क्या सेफ्टी फायर नॉर्म्स थे, इसके पास एनओसी था? ये BNB था, जो BNB रजिस्ट्रेशन लेकर करता है। अब बाकी आगे जांच का विषय है, लोग इसको अधिकारी देखेंगे क्या। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सतीश उपाध्याय जो कि विधायक है दिल्ली सरकार में और ऐसे में वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो इसी इलाके से विधायक है। लेकिन जिस तरह से अब जांच की बात कही जा रही है कि इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी
घटना है जिसमें 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। सर, क्या देखा था आपने यहाँ पे? क्या हुआ था सर, क्या देखा था? सुबह आग लगी थी इसमें और रजाई गद्दे डाल के जब बचाया गया था फर्स्ट फ्लोर से। अच्छा, क्या लगता है मैम, इतनी बड़ी घटना हो गई इस इलाके में? देखिए, घटना तो छोटी हो कुछ हो, एक भी जान के सब बड़ी होती है। हमारे विधायक जी ने उसी समय सबको अरेंज करवा के यहाँ पे सारी डिपार्टमेंट को डिप्लॉय कर दिया था और काम बहुत तेजी से अब देखिए, जो रात में एकदम से काम हुआ, हमें किसी को इन्फॉर्मेशन ऐसे तो नहीं होती है ना इस चीज की। सुबह हुआ है मैम, रात में नहीं, सुबह अभी अर्ली मॉर्निंग हुआ, कोई पता भी नहीं है कि समय क्या है। आप ये देखिए, अगल बगल होटल है, दुकानें हैं, किस तरह से एक होटल नहीं है, लाइन से आप देखिए 2 होटल है, कई सारी दुकानें हैं, रेसिडेंशियल भी, ऊपर घर भी है, आप ये देखिए। तो इसमें और भी बड़ी जो घटना है वो हो सकती थी।